Yes, my dear students of BA Honors, as I promised you that I'll be coming with the lecture on your paper of honors. In this paper, we have got four Western political thinkers. Three are Hobbes, Locke, Rousseau. Most of you have studied them in BA Part 1 also. But here you are supposed to study in a little bit more detail. So we cannot have a very big lecture here. So I'll try to sum up in a comparative way what they say. From this, you will have a very good idea. So I'll be speaking a little bit faster. You can, while watching the lecture, you can stop me, watch, then move forward. So occasionally I will be using Hindi for the students of the Hindi medium. So in social contract theory, as we told you, and in our syllabus of BA Honors Political Science final year, we have a paper on Western political thought, and we will have to study Hobbes, Locke, and Rousseau today. We are going to study it. Hobbes, Locke, Rousseau. Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau. So these are three very important people when we talk of social contract theory. Leviathan is the book. Let us talk about the books they have written. The book written by Hobbes is Leviathan. So what do we mean by Leviathan? Leviathan is a type of sea monster. You see, there is something called the law of the sea. समुंदर का नियम क्या होता है? छोटी मछली बड़ी को खाती है और लास्ट में एक बड़ा मॉन्स्टर आता है, वो सबको खा जाता है. तो लिवियाथन. Then John Locke has written two treatises on civil government. Civil government के ऊपर दो ग्रंथ. The book written by J.J. Rousseau is The Social Contract. So we will be discussing these three people and these three books in our lecture. I would like to tell you that the major points on which they are speaking is first, state of nature. Before the state came into being, what was the situation? That condition is called state of nature. So all the three will be speaking on state of nature. Then they will be speaking on social contract. And finally, they will be speaking on what type of political authority came out of that. So first, state of nature. Thomas Hobbes gives a very, very bad, very gloomy picture of state of nature. He takes it from the psychology. He says, man by nature is a selfish human being. You see, people are greedy, people are selfish, and that nature reflects whenever and wherever human beings would have been. So in state of nature is an imaginary condition when state was not born. Imagine, go to imagination, find what type of condition was there when state was not born. So that condition is depicted by Thomas Hobbes here. Hobbes says the state of nature was very bad. There was a war of everybody against everybody. The life of man was nasty, brutish, greedy, and short. There was no right. Imagine. He says there was no right. There was only one right. Might is right. Jiski lathi, uski bhans. So he has given a very bad picture. So then Hobbes says people were fed up from the state of nature. People were fed up from the state of nature and they wanted to get rid of that. In order to get rid of that, they enter into a social contract. अब कैसा social contract हुआ? इसमें एक स्टेटमेंट है, याद रखिए, यहाँ स्पेस कम है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप याद रखिए. आई सरेंडर एंड गिव अप. ये एक बंदा कहता है, हॉब्स कहता है सब लोगों को. There are so many people and here is a man who's sitting above. ये कहता, I give up and surrender all my rights of governing myself to this man or body of men on the condition that everybody present here is doing the same. कि मैं अपने आप को शासित करने के सारे अधिकार इस व्यक्ति को दे रहा हूं इस शर्त पे कि आप सब भी ऐसा ही करेंगे. So people in place of that, this man, the king, will give us peace and life. So we surrendered, the people surrendered all the rights to this man or body of men on the condition that he will give them a peace and ordered life. So no right was retained by the men. All rights were surrendered and given to the king. But one right, you should remember it, one right was retained. That right was right to life. All the rights were surrendered except one, right to life. So when all the rights were surrendered to the king never signed it. King was not a party to the contract. People had a contract and surrendered all their rights and gave to this person, and he never signed. He was not a party, he was above that. So what type of political authority emerged? Government कैसी बनी?
पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी बनी? पॉलिटिकल अथॉरिटी जो बनती है दैट इज एब्सोल्यूट monarchy, असीमत राजतंत्र. ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन किंग. नाउ द सेम थिंग लेट अस सी Locke. Locke in his book Two Treatises on Civil Government says, I do not agree with Hobbes. Well, he doesn't say, but his philosophy says that there is no agreement with Hobbes. Man is not no, man is not like animals. Okay, man is beast, but he is a noble beast. ये आप याद रखना, ये टर्म आपको छोटा क्वेश्चन पूछते हैं. नोबल बीस्ट, बीस्ट तो जंगली होता है, नोबल तो जेंटलमैन होता है. कि बीस्ट तो है लेकिन जानवरों जैसा बीस्ट नहीं है. ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस भी हैं, स्माइल भी करते हैं, दुखी भी होते हैं, आंसू भी बहाते हैं. तो ही सेज द स्टेट ऑफ नेचर वाज नॉट which Hobbes says. State of nature was actually good. It was of peace, preservation and mutual goodwill. And there were rights also. Man had three rights. Right? Remember, इसको याद रखना, ये छोटा क्वेश्चन आएगा. Which three rights? Right to life, one. Right to liberty, two. And right to property. अब राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर पूछते हैं, केवल पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपने यही एक्सप्लेन करना. प्रॉपर्टी, नाउ प्रॉपर्टी हैज गॉट टू डेफिनेशंस. याद रखना, प्रॉपर्टी की दो डेफिनेशन, एक नैरो, दूसरी ब्रॉडर. नैरो डेफिनेशन क्या है? ऑल योर मटेरियल पोजेशंस. मेरे दो प्लॉट हैं, मेरी गाड़ी है, मेरे कपड़े हैं, मेरे पास घड़ी है, चश्मा, वट एवर यू हैव गॉट, योर ऑल मटेरियल पोजेशन, जो आपके पास मलकियत है, दैट इज योर property. That is narrow definition. The broader definition is all your material belongings plus your self. आपकी सारी material possessions और आपका अपना आप. तो that is a right to that is property. तो ये तो फिर अजीब बात है. यहाँ तो समझ आता था कि state of nature was not good, लोग उससे छुटकारा चाहते थे and they went for social credit, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक है. Then why people want to get rid of this? If everything is okay, you have very good, you have right to liberty, life and property, everything is okay, peace, preservation, mutual goodwill. Why then, why social contract? Yes, Locke gives a beautiful answer. He says, I agree that everything was there, but there was no machinery to tell, to codify the laws, to give the decision. सब कुछ था लेकिन कोई मशीनरी नहीं थी जो बताए कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी, किसके कौन से राइट्स हैं. तो वो मशीनरी क्या होगी? गवर्नमेंट. देन देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट. अब हाउस में तो कॉन्ट्रैक्ट में अथॉरिटीज तो साइन कर नहीं रही, लेकिन यहाँ हियर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, रिमेंबर, बिटवीन द पीपल एंड द अथॉरिटीज. लोगों में और अथॉरिटीज में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, क्योंकि these are the people, they will tell which belongs to whom. तो ऐसे में अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट हुआ, जैसे आपका एग्रीमेंट होता है ना डेमोक्रेसी में, यू कास्ट द वोट एंड फॉर 5 years यू गिव देम द राइट, और अगले लगा कि हमारे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे मैनिफेस्टो में पूरे नहीं हुए, यू कैन कॉल देम बैक. देयर आर सर्टेन कंट्रीज यहाँ बीच में भी वापस बुला सकते हैं. स्विट्जरलैंड में रिकॉल होता है 5 साल से पहले भी, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट खरीदा और 5 साल वही पहनो चाहे जैसा मर्जी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे रिकॉल भी होता है. तो ये फिर इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी बनी? यहाँ तो एब्सोल्यूट मोनार्की बनी थी, सारी पावर राजे के पास. यहाँ सारी पावर अथॉरिटीज के पास नहीं है, लिमिटेड पावर्स. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं आजकल, क्या कहते हैं हम उसको? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लिमिटेड मोनार्की. इंग्लैंड, अमेरिका, India, all those liberal democracies are example of this government. This is what John Locke says. अब एक ने अच्छा कहा स्टेट ऑफ नेचर, दूसरे ने बुरा, अब बुरा कहा. और what रूसो विल से, ये रूसो ने, उसकी बुक का नाम ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो थ्योरी का नाम है हमारी. तो रूसो सेज इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर, ही सेड स्टेट ऑफ नेचर is not what Hobbes say. Human beings are not that bad. State of nature is what Locke says. Yes, it was good. Peace है, rights हैं, goodwill है. But what happens over the time? Greed, hoarding, जमाखोरी होती है ना. जैसे अभी
कोरोना की बात ही चले, लोगों ने मास्क छुपाने शुरू कर दिया, सैनिटाइजर ब्लैक होने शुरू हो गए। तो ये ह्यूमन नेचर थी। पहले पॉपुलेशन कम थी। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, कई बार हम उसको गांधी के साथ भी जोड़ देते हैं, गीता के साथ भी जोड़ देते हैं, और रूसो की भी है, नेचर हैज़ गॉट एनफ फॉर द नीड ऑफ ऑल एंड नथिंग फॉर द ग्रीड ऑफ इवन वन। सबकी इच्छा पूरी करने के लिए नेचर के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक बंदे की भी लालच पूरा करने के लिए नेचर के पास कुछ नहीं है। तो ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, पीपल स्टार्टेड होर्डिंग, होर्डिंग शुरू हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो क्या आ गया फिर? प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, दुर्लभता। जब स्केर्सिटी आएगी, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आपको पता है, स्केर्सिटी आएगी तो प्रॉब्लम भी आएगी, स्ट्रगल भी होगी। तो द गुड स्टेट ऑफ नेचर सी दैट टर्न्ड इनटू बैड स्टेट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ होर्डिंग, ग्रीड एंड ओवर पॉपुलेशन। एक मैं चीज भूल गया था, सॉरी, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की, याद रखना लॉग वाले में दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है पॉलिटिकल। पहले कॉन्ट्रैक्ट से लॉग सेज सोसाइटी बनती है, सिविल सोसाइटी। अकल वाली बात तो बैठो ना, एकदम से जंगल में घूमते कैसे करोगे, पहले तो समाज बना ना, देन बिकेम द स्टेट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज governmental contract or political contract. When you get a question, give two contracts of law. You will say first social, the second is political or governmental, whatever you want to use the term. Now, Locke says the first good state of nature, because of overpopulation, hoarding, greediness, turned into a bad state of nature. Of course, bad state of nature से तो लोगों को चाहिए get rid. तो he said there was not a contract of the people and there was no somebody above the people. No, there was no a contract between the government and the people. This was a contract among all were equal. बात तो सही है। तो उसमें कैसे उसने बोला जनरल बिल। आपको बड़ा क्वेश्चन अगर आए जनरल बिल पे तो उसको की पूरी थ्योरी लिख देना। अब मैं जनरल बिल बताता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी सा है, मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, आप इसमें याद रख लीजिए। He says there are two types of bills, एक्चुअल बिल, रियल बिल। थोड़ा वर्ड्स के साथ प्ले है, बट दो तरह की रूसो कहता बिल होती है, एक्चुअल बिल एंड रियल बिल। एक्चुअल बिल क्या है? हमारी सेल्फिश बिल, कि आई वांट टू टॉप द एग्जामिनेशन, तो मेरे साथी को बुखार हो जाए और मैं टॉप कर जाऊं, स्वार्थी, सेल्फिश बिल। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल बिल। वो कहते हैं ना गुरुदेव सर्वत का भला, जैसे हिंदू धर्म में भी कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वे संतु सुखी न। So when we talk, there is a bill which thinks of all. That is also called social bill. Actual bill is selfish bill, real bill is social bill. तो इसको छोड़ देंगे, the sum total of all the real bills will be जनरल बिल। पूरे लोगों की रियल बिल को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगी जनरल बिल। जनरल बिल ही गवर्नमेंट होगी। तो फिर कैसी अथॉरिटी हुई? ऑल आर सिटीजन्स, ऑल आर गवर्नमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ऐसे हालात में जो गवर्नमेंट बनेगी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनेगी। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेक्चर, उसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा स्पीड से बोलूँ, आप इसको थोड़ा आराम से दिला। मैं तो हिंदी में भी बता दूँ हिंदी वालों के लिए कि हॉब्स ऑफ रूसो 3 हमारे हैं, चौथा मार्क्स है, बाद में कराऊंगा। तीनों की किताबों के नाम, हॉब्स की किताब का नाम लिवियाथान है। लिवियाथान का मतलब है एक राक्षस समंदर में रहने वाला, और टू ट्रीटाइसेस ऑन गवर्नमेंट जो है लॉ की किताब है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की किताब है। ये तीन चीज़ों पे अपने व्यूज देते हैं, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर, कुदरती व्यवस्था, प्राकृतिक अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन जो हमारा सामाजिक समझौता हुआ, पॉलिटिकल अथॉरिटी, राजनीतिक सत्ता कैसी बनी। लॉक कहता है बहुत बुरी स्टेट ऑफ नेचर थी, ब्रूटिशनेस थी, लोगों की लाइफ बड़ी गंदी थी। ऐसी गंदी लाइफ से बचने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट आपस में किया और अपने सारे अधिकार दे दिए इस बंदे को, एक को, कि हमें शासित करो, उसके बदले में हमें पीस दो। और हमने सारे अधिकार दे दिए, एक अधिकार रखा जिंदगी जीने का अधिकार। उससे जो हमारी अथॉरिटी बनी असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र बना तो लॉक कहता है नहीं, प्राकृतिक अवस्था बुरी नहीं थी, बंदा इतना बुरा नहीं है, वहाँ पे शांति थी, प्रिजर्वेशन थी और म्यूचुअल आपस में गुडविल थी लोगों में। तो हमारे पास अधिकारी भी थे, लाइफ का, जिंदगी जीने का अधिकार था और स्वतंत्रता का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति दो तरह की, एक आपकी मलकियत मटीरियल, दूसरा आपका अपना आप प्लस मलकियत सारा।
तो ये उसमें से फिर लोगों ने क्या किया कि सब कुछ होने के बावजूद लेकिन कोई मशीनरी नहीं थी कि कौन बताए कोडिफिकेशन कौन करे। इसके लिए गवर्नमेंट बनानी पड़ी। आपस में सी उन्होंने हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जिनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। अगर वो ठीक नहीं करते वो बुला के दूसरे भेज दिए जाएंगे। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट बनी, लिमिटेड गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो आजकल हमारे इंडिया में और आपको दिखती है वोटे पा के। रूसो कहता पहले स्टेट ऑफ नेचर अच्छी थी, गंदी अपने अच्छी थी। जैसे लोग कहता धीरे धीरे लोगों में जमाखोरी शुरू हुई, लालच बढ़ा और उसके बाद में जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर गंदी हो गई। उस पर फिर लोग उस गंदी स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए लोगों ने एक विल बनाई, इच्छा बनाई, जो जिसको वो जनरल विल कहते हैं। तो उससे जो निकले ट्रक डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो विद दिस आई थिंक आई एम एबल टू फिनिश ऑल द थिंग्स विद इन 15 मिनट्स। तो इससे ज़्यादा आई एम थैंकफुल टू उर्बी हु हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल टेबल फॉर यू पीपल, and I'm also thankful to Abhikar. He has lended me his Apple Air to make this video and lecture. Any question, already you are having my phone number. तो कोई भी आपको पूछना हो क्वेश्चन, अगेन 9815656189। इसको मैं वहीं पे डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब वाले में, GD एस्ट्रोलॉजिक। तो उसको सब्सक्राइब कर लो। अगला लेक्चर जो मार्क्स पे आएगा फिर ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड रीड वेल।